Good morning class 12 students. As you know, we are doing inverse trigonometric functions, and today we will be doing some advanced problems which are not so advanced, but you can say which are conceptual. तो concept clear करने के लिए आज देखते हैं, and the test which I will be taking will also contain these kind of questions. They are easy to understand, but they are based on concepts. So some of them are like this. First, let me take a question that we can done by another way. I solved it yesterday, but that was lengthy method. I have got one more method. If you can understand this one, you will देखो अब sin inverse 7 by x plus sin inverse 24 by x is equal to 5 by 2. अगर इस टाइप का इक्वेशन आता है, राइट, सॉल्व दिस इक्वेशन. तो आप देखो, अगर यहाँ पे आपको पता है sin inverse x plus cos inverse same quantity is equal to pi by 2. That means this quantity here is same as cos inverse of 7 by x. This quantity is same as cos inverse of 7 by x is equal to sin inverse of 24 by x. Now you know how to convert cos inverse into sin inverse. You can take square root. So we can write sin inverse of root 1 minus 7 by x whole square. And this is also sin inverse 24 by x. Now we can compare sin inverse. Quantity inside sin inverse, you will get 1 minus say 49 by x square is equal to 24 by x. Squaring both sides, you will get x square minus 49 is equal to 24 square. Okay, and easily you will get that x square is equal to 576 plus 49, or x square is equal to 625, or x is equal to plus minus 25, but we will not take minus 25 because that will make negative angles. So our answer is x is equal to 25. So this is the easier method. Yesterday I solved it by taking cos inverse on both sides. That is also another method, but वो जो method है वो कम यूज में आता है. जहाँ पे भी यूज में आता है उसको भी यूज करेंगे, पर वो अलग टाइप की क्वेश्चंस में. तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, बट ये जो मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, दिस मेथड इज मोर इफेक्टिव एट टाइम्स. ओके, तो इसको आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ वी कम टू सम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट. अब आप देखो, एक आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स x. ठीक है, आपको मालूम है 2 tan इनवर्स x, एंड विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग, एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन x, स्टूडेंट्स विल राइट कुछ मतलब x पे रिस्ट्रिक्शन देखे बिना बच्चे क्या लिखेंगे, सीधे लिख देते हैं tan इनवर्स 2x upon 1 minus x square. Okay, this is not always true. So today my question is, if x is greater than 1, and if I write like this 2 tan inverse x is equal to some bracket plus this tan inverse 2x upon 1 minus x square. Question is, what will come here? What will it be? 0. क्या यहाँ पे 0 आएगा, माइनस पे आएगा, पाई आएगा, या -1 से मल्टीप्लाई होगा ये. तो आपको इसको कर ले, ये क्या करना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन 1. सो फॉर x ग्रेटर देन 1 एक काम करते हैं, x को ले लेते हैं 2, लेट x बी 2 ग्रेटर देन 1. तो क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स 2. 2 tan इनवर्स 2 इज LHS. RHS इज tan इनवर्स 2 into 2 4 upon 1 minus 3. This is the negative angle. Negative angle means goes into fourth quadrant. और fourth quadrant में क्या होता है एंगल? एंगल होता है 0 से -π/2 से 0 के बीच में. ठीक है, ये एंगल जो होता है tan इनवर्स 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. इसका डबल जो है, क्योंकि 45 से ऊपर गया है, तो ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में. अब सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इक्वल नहीं हो सकते, राइट, वो भी नेगेटिव एंगल के साथ. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, और वो क्या ऐड करना पड़ेगा, पाई. तो बेसिकली यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ गया, पाई आ गया. So whenever x is greater than 1, you will write the identity 2 tan inverse x is equal to pi plus tan inverse 2x upon 1 minus x square. ठीक है, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा. तो आप ट्राई कर सकते हो, what will be the answer when x is less than -1. और आप एक इंटरवल लो, -1 से 1 के बीच में क्या होगा. तो आप देखोगे -1 से 1 के बीच में ये आइडेंटिटी सेम रहती है. We will not add anything, so we can write 0 here. Now the question is, when will it becomes negative? तो क्या ये कभी नेगेटिव भी होगा, वो भी आप टेस्ट कर लेना. पर आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, x इज लेस देन -1, तो इसका क्या ऐड करेंगे, प्लस पाई, माइनस पाई या 0, ये आपको देखना है यहाँ पे. ठीक है, इसको बोलते हैं एडजस्टिंग द आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट. एडजस्टिंग द आइडेंटिटी, जैसे एक आइडेंटिटी और पढ़ी होगी आपने, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ऐसे आ गया. ठीक है,
अब इसका क्या रिस्ट्रिक्शन है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैलिड है। तो सपोज करो अपन एक बार देखते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, tan इनवर्स की रेंज और tan इनवर्स की रेंज तो सेम है, बट यहाँ पे 2 tan इनवर्स x आएगा, ठीक है। सो सपोज करो एक काम करते हैं, 2 tan इनवर्स x को मैं फिर से मैं उसी रेंज में लाई करवा देता हूँ जो साइन इनवर्स की है, -π/2 से π/2 और 2 से आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे मिलेगा -π/4, यहाँ मिलेगा tan इनवर्स x, ठीक है, और यहाँ मिलेगा π/4 और tan दोनों तरफ लेके तो यहाँ पे आएगा क्या 1, क्योंकि tan π/4 1 होता है और -1 होता है -π/4, और यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखो when x belongs to -1 से 1 this will remain the same, but what will happen if x is greater than 1 here। तो देखते हैं भाई x अगर 1 से 1 बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और x 1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एक बार वैल्यू लेके देखते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 tan इनवर्स 2 आ गया, और इधर क्या आया sin इनवर्स 2 into 1/1 + 1 स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 into 1 2 या 1 + 1, तो बेसिकली ये मिल गया 2/2 है, sin इनवर्स 1 हो गया, और sin इनवर्स 1 होता है π/2, ठीक है ना, sin इनवर्स 1 तो π/2 आता है। तो बेसिकली एक काम करता हूँ, मैंने 2 लिया था, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज x इज इक्वल टू 2। अब देखो 2 to the 4 और यहाँ पे आ गया 4, तो बेसिकली ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ 4/5, क्या मिल रहा है साइन इनवर्स 4/5। ये जो एंगल है साइन इनवर्स 4/5 90 से कम है, और ये tan इनवर्स 2 45 से बड़ा है, और 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 + 45 यानी 90 से बड़ा हो गया, LHS 90 से बड़ा हो गया, RHS 90 से छोटा है। दिस कैनॉट बी ट्रू, सो व्हाट यू विल डू इज you will do you will write pi minus this, so our identity will become 2 tan inverse x is equal to pi minus, ठीक है, pi minus sin inverse 2x 1 plus x square। अब जाकर ये सही होगा कैसे, for which restriction x is greater than 1, for x is greater than 1 you will write like this, now it is correct। Similarly what will happen if x is less than -1, इस आइडेंटिटी में 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स 2x 1 + x स्क्वायर में अगर x -1 से छोटा है तो क्या होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे छोटा सा नंबर लेना है और उसके बाद दिमाग लगाना है कि क्या होगा इसके अंदर। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक टुडे, ओके। अच्छा, अब अपन आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में, जिसको बोलते हैं ग्राफ्स ऑफ cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स ऑफ cos x। अब इनमें देखो फर्क, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, that is the cos of cos inverse x, ठीक है। now what is cos of cos inverse x, it is you can say, आप तो immediately बोलोगे अरे cos और cos inverse x gets cancelled, no they get cancelled, but what will be the graph of cos inverse x, so you have to understand cos inverse x जो है उसका जो आउटपुट है वो होता है -1 से -0 से पाई होता है, और x क्या वैल्यू ले सकता है लेकिन -1 से 1, तो आप -1 से 1 के आगे नहीं जा सकते, wherever you have -1 and you have 1, okay, and since this is y is equal to x type of graph you will get a straight line, okay, no doubt। so this is the graph of cos inverse x। इसमें हमने क्या ध्यान दिया, x पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, x पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है जो cos इनवर्स पे लगा है, so we cannot go beyond -1 and beyond 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। अगला देखो आपके पास आ रहा है साइन और सपोज करो सेम आ जाता है आपके पास cos इनवर्स ऐसे आता है, cos इनवर्स ऑफ cos x आ जाता है, ठीक है। इस बार देखो cos x पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, नाउ वी विल हैव टू कंसीडर द कंप्लीट नंबर लाइन, बट नाउ द रिस्ट्रिक्शन इज ऑन आउटपुट ऑफ cos इनवर्स इज 0 से पाई, 0 से पाई से आगे नहीं जा सकते आप, तो 0 लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे सपोज -π/2 ये π/2 है और पाई, तो आपका जो भी आउटपुट होगा 0 पे तो मान लो 0 आ रहा है, ठीक है, π/2 पे π/2 आ रहा है, ठीक है, पाई पे पाई आ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन जैसे आप पाई के आगे गए, अब पाई के आगे जाते क्या होगा, ये जो एंगल है ये वापस इसको इधर लेके आ जाएगा पाई के अंदर, तो बेसिकली ये वापस डिक्रीज करने लगा 2 पाई तक ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, इस तरह से कंप्लीट नंबर लाइन को ये कवर करेगा, इट विल कवर द कंप्लीट नंबर लाइन, व्हिच वन cos इनवर्स ऑफ cos x, जबकि cos इनवर्स x वाज नॉट कवरिंग द कंप्लीट नंबर लाइन, ठीक है। इसी तरह से आपको ग्राफ बता देता हूँ
साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसमें अगेन रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्स इज देयर, तो अगेन आप एक ग्राफ बना रहे हो -1 और 1, और यहाँ पे भी 1 और -1, बेसिकली एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी -1 से लेकर 1 तक की, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। व्हाट अबाउट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के अंदर आपके पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, what you will get the complete number line because x has no restriction now, x can take any real value, और आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स होता है -π/2, तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगा और पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, -π/2 से π/2, यहाँ पे भी ले लेते हैं -π/2 से π/2, तो इस रेंज में तो ये आ रहा है ग्राफ, ठीक है, यहाँ तक ऊपर जाएगा, पर अब ये देखो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ π/2 तक गया, फिर नीचे जाएगा ये ग्राफ, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा इस तरह। So this is also cyclic, repeating graph, right? But straight line में repeat होता है, sin inverse की sin x की तरह होता है, पर straight line में repeat होता है। दूसरा देखो नेगेटिव जा रहा है, जबकि cos inverse नेगेटिव नहीं जा रहा था, cos inverse स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जा रहा था ऐसे, और यहाँ तक जाता था, फिर यहाँ, this was the difference. This is cos inverse x, this is cos inverse of cos x, this one, this line, and this line is sin inverse of sin x. ये π/2 से घूमेगी और ये π से घूमेगी, और ये cos वाला जो ग्राफ है वो 0 के नीचे नहीं जा रहा, साइन वाला ग्राफ 0 के नीचे जा रहा है। तो दीज वर सम एडवांस कॉन्सेप्ट, और अब आते हैं अपन नेक्स्ट वन मोर लॉजिकल क्वेश्चन पे। व्हाट इज, सपोज करो ऐसे क्वेश्चन दिया मैंने बच्चों को, tan इनवर्स x, ओके, tan इनवर्स x इज इक्वल टू सम फिल इन द ब्लैंक प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल कम हियर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 या x इज ग्रेटर देन 1, फॉर x इज ग्रेटर देन 1 दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ओके, तो यू विल गेट व्हाट, सपोज करो x को ले लेते हैं अपन 2, तो बेसिकली देखते हैं tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू cot इनवर्स 2, हाँ, नो प्रॉब्लम, दिस इज करेक्ट, तो विल गेट 0 हियर, बट व्हेन x इज लेस देन 0, सपोज करो x ले लेते हैं -2, तो देखो क्या होता है tan इनवर्स -2, अब ये tan इनवर्स -2 हो गया नेगेटिव एंगल, जबकि cot इनवर्स -12 जो होगा, cot इनवर्स का रेंज जो होता है ना वो होता है 0 से पाई के बीच में, तो ये तो चलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये चलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो अब इनको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं -π ऐड कर देते हैं इधर, तो -π ऐड करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ से निकल जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट से सीधे फोर्थ में चला जाएगा, नेगेटिव एंगल मिल जाएगा -π के कारण, सो दैट वाज द एडजस्टमेंट यू हैव टू डू, राइट। सो दीज आर सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स, अगर आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, सो आई होप यू विल रिपीट दिस, revise this, and then you will write and make your own notes on it, and then be prepared for a test at around 3:30 today. So best of luck for the test and revise your topic very well, ठीक है, see you in the next class.